खुदावंद का शुक्र, उसके नाम की तारीफ हो जिसके लिए हम सब जमा हुए हैं। इससे पहले कि मैं खुदा का कलाम शुरू करूं, आप सबको ईस्टर मुबारक हो। खुदावंद ने ये मुमकिन किया, आज हम उसके हुजूर जमा हुए, गीतों के जरिए से हमने उसकी सिताइश की, उसकी प्रस्तश की। अब वक्त है कि हम खुदावंद की आवाज को सुने। आज बड़ा खास दिन है हमारी जिंदगी का। हम एक खास काम के लिए जमा हुए हैं। वो काम है खुदा की प्रस्तुत करना, खुदा के नाम को जलाल देना। और आज का दिन मसीह यीशु के जी उठने का दिन है। आज हम उसकी याद को सेलिब्रेट कर रहे हैं, इसलिए कि हम जानते हैं कि यीशु मसीह 2000 से ज्यादा अरसा हुआ जब जमीन पर आए, जमीनी खिदमत की और मसलूब हुए, फिर तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। आप सबको पता है हम ईस्टर की इबादत क्यों करते हैं? पता है ना क्यों करते हैं? यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, ये नॉलेज है। लेकिन मैं आज बात करूंगा मसीह के जी उठने के मुकाशफा पर। लोगों के पास मसीह के जी उठने का नॉलेज है, लेकिन बहुत कम लोग हैं जिनके पास उसके जी उठने का मुकाशफा मौजूद है। मसीह का जी उठना बहुत बड़ी बात है। अगर जी उठने की बात करें तो इससे पहले कि मसीह जी उठा, बहुत सारे और भी मुर्दे जी उठे थे। जिंदा किए गए थे। एलिया की मिनिस्ट्री में, अलीशा की मिनिस्ट्री में, यीशु मसीह की मिनिस्ट्री में मुर्दे जिंदा हुए, लेकिन जिंदा होने के बाद फिर दोबारा मर गए। लेकिन यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा और अब्दुल्लाबाद जिंदा रहेगा। आमीन। कभी मरने का नहीं, हमेशा जिंदा रहेगा। आए खुदा की तरफ बढ़ते हैं, खुदा के कलाम की तरफ बढ़ते हैं। लूका की इंजील के 24वें बाब में पहली आयत से 6ठी आयत तक पढ़ेंगे। तो उन्होंने हुक्म के मुताबिक आराम किया, लेकिन हफ्ता के पहले दिन वह सुबह सवेरे ही उन खुशबूदार चीजों को जो तैयार की थी लेकर कब्र पर आई और पत्थर को कब्र पर से लड़का हुआ पाया, मगर अंदर जाकर खुदावंद यीशु की लाश ना पाई। और ऐसा हुआ कि जब वो इस बात से हैरान थी तो देखो, दो शख्स बुराक लिबास पहने उनके पास आ खड़े हुए। जब वह डर गई और अपने सर जमीन पर झुकाए तो उन्होंने उनसे कहा कि जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो? वो यहां नहीं बल्कि जी उठा है। याद करो, जब वो गलील में था तो उसने तुमसे कहा था, जरूर है कि आदम के हाथ में
حوالے کیا جائے اور تیسرے دن جی اٹھے۔ آمین۔ غور سے سنیے، مسیح یسوع کے پیروکار، عقیدت مند، جب ہم ان پر غور کرتے ہیں ان کی زندگیوں میں، تو ان کے پاس یسوع مسیح کے جی اٹھنے کا مکاشفہ نہیں تھا، کلام تھا۔ اس سے پہلے کہ یسوع مسیح مصلوب ہوتا، اپنی خدمت میں کئی جگہوں پر اس نے اپنے جی اٹھنے کا ذکر کیا تھا کہ وہ ضرور ہے کہ وہ گناہگاروں کے حوالہ کیا جائے گا اور اسے رد کریں گے، اسے ذلیل کریں گے، اسے مصلوب کریں گے، اور پھر وہ تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے گا۔ یہ کلام ان کے پاس تھا، انہوں نے پہلے یہ سنا ہوا تھا، لیکن ان کے اندر اس کلام کا مکاشفہ نہیں تھا اور وہ کلام کو بھول گئے تھے۔ جب ہمارے اندر کلام کا مکاشفہ نہیں ہوتا تو ہم سنا ہوا کلام بھول جاتے ہیں۔ یہاں پر ملتا ہے کہ فرشتہ کیا کہتا ہے، 5ویں آیت میں لکھا ہے، جب وہ ڈر گئیں اور سر زمین پر جھکائے تو انہوں نے ان سے کہا، سنیے ذرا غور سے، کہ تم زندہ کو مردوں میں کیوں ڈھونڈتی ہو؟ تم زندہ کو مردوں میں کیوں ڈھونڈتی ہو؟ اب غور کر اس بات پر، فرشتہ کہتا ہے ان عورتوں کو جو یسوع مسیح کی عقیدت لیے کہ وہ مر گیا ہے، قبر میں ہے، مصالحہ، خوشبودار مصالحہ، خوشبودار چیزیں جمع کر کے، تیار کر کے، خرید کر آئیں کہ وہ اس کی قبر پر جائیں گی، اس کی لاش پر لگائیں گی، اس کو دیکھیں گے، لیکن ان کے پاس جی اٹھنے کا مکاشفہ نہیں تھا۔ اب فرشتہ کہتا ہے، تم زندہ کو مردوں میں کیوں ڈھونڈتی ہو؟ کیا وجہ ہے؟ سوال ہے کہ تم زندہ کو مردوں میں کیوں ڈھونڈتی ہو؟ اس کا مطلب ہے کہ فرشتہ ان کو سکھا رہا ہے کہ جی اٹھنے کا مکاشفہ آپ کے پاس کیوں نہیں ہے، جبکہ یسوع مسیح نے پہلے بتایا ہوا تھا۔ پھر آگے فرشتہ اس طرح سے کہتا ہے، زندہ کو مردوں میں کیوں ڈھونڈتی ہو؟ وہ یہاں نہیں ہے بلکہ جی اٹھا ہے۔ یاد کرو کہ جب وہ گلیل میں تھا تو اس نے تم سے کہا تھا، یہ یاد کرو، کلام بھول چکی ہو، کلام آپ کو یاد نہیں ہے۔ کلام یہ کہتا ہے کہ اس نے پہلے بتایا تھا اور فرشتہ نے کہا، یاد کرو جب وہ گلیل میں تھا تو اس نے تم سے کہا ہوا تھا۔ اس نے کلام بھی بتا دیا، اس نے وہ جگہ بھی بتا دی جہاں پر کلام ہوا تھا۔ جب تم گلیل میں تھے تب اس نے کلام کیا تھا، اور کلام کیا تھا؟ ضرور ہے کہ ابن آدم گناہگاروں کے ہاتھ میں حوالے کیا جائے اور مصلوب ہو اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے۔ اب فرشتہ ان عورتوں کو کہتے ہیں جو یسوع مسیح کو قبر میں ڈھونڈ رہی ہیں۔ مجھے ایک بات یاد ہے، جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو بڑے لوگوں کے ساتھ ہم صبح سویرے ایسٹر کے دن جلوس میں ہوا کرتے تھے اور ہم بشارت دیتے تھے یسوع مسیح کے جی اٹھنے کی۔
मुझे नहीं पता और जगह पर भी ये था कि नहीं, हमारे गांव में ऐसा होता था कि हम गीत गाते हुए कब्र पर जाते थे, कब्रों पर, और वहां पर कब्रों पर जाते और गीत क्या गाते होते थे, जिंदा को मत ढूंढो, मुर्दों में मत ढूंढो, क्या, मुर्दों में मत ढूंढो उसको, जिंदा को मुर्दों में मत ढूंढो। और फिर कब्रों पर जाते थे। ना समझी थी, समझ नहीं थी, वो जी उठा है, उसकी कब्र आज भी खाली है। आमीन। अब बात यह है कि ये मुकाशफा अगर हमारे अंदर हो, हम इस बात को सही तरह समझ जाएं कि यीशु मसीह जी उठा है, तो फिर हम कब्रों पर क्यों जाते हैं तलाश करने के लिए, क्योंकि उसकी कब्र तो आज भी खाली है। क्यों ढूंढती हो उसको, मुर्दों में क्यों ढूंढती हो? क्योंकि वो तो जी उठा है और अपने कहने के मुताबिक जी उठा है। और उसके हवारी यीशु मसीह के शागिर्द कहां पर थे तब? बाइबल में लिखा है वो कमरे में बंद थे और यहूदियों के डर से कमरा बंद किया हुआ था, दरवाजे बंद थे। खौफ था, डर था कि हमारा मसीह, हमारा लीडर जो बातचीत करता था, वो तो मर गया है, उसकी तो डेथ हो गई है, अब हमारी कोई वैल्यू नहीं, और अब हम किसी काम के नहीं रहे, अब तो हमारी मुनादी खत्म, अब बिल्कुल सब कुछ, गवाही भी खत्म, कुछ भी नहीं रहा, अब तो सिर्फ मौत का खतरा है कि यहूदी हमें भी पकड़ेंगे और हमें भी मारेंगे। खौफ था, दरवाजे बंद थे, डर था, उनके पास जी उठने का कोई मुकाशफा नहीं था। बाइबल में लिखा है जब इन औरतों ने उनको बताया कि वो जी उठा है, 11वीं आयत पढ़िए। मगर ये बातें उन्हें कहानी सी मालूम हुई, मगर ये बातें उन्हें कहानी लगती थी। ये बातें कि वो जी उठा है, उनके अंदर मुकाशफा अभी भी नहीं उठा, अभी भी उनको खुशी नहीं मिली, और उसकी ये खबर सुन के वो खुश नहीं हुए, बल्कि ये बात उनको कहानी सी मालूम हुई। आगे, और उन्होंने उनका यकीन ना किया, उन्होंने उसका यकीन ना किया। कहानी मालूम हुई और यकीन ना किया गया। कहानी उनको कहानी लगती थी, उनको हकीकत नहीं लगती थी, और वो इसको कहानी समझते थे। क्या उनके पास वो कलाम जो यीशु मसीह ने उनके साथ गलील में किया, फरिश्ता ने कहा आपको याद नहीं कि गलील में जब वो था तो उसने कलाम किया था कि वो मुर्दों में से जी उठेगा। ये कलाम कहां पर था? कलाम तो भूल गए थे, उनको तो कलाम याद ही नहीं था। आज बहुत सारे लोग मसीह के जी उठने की ईद करते हैं, उसमें सारी रस्मात करते हैं, कपड़े नए, फुल तैयारियां, खाने, सब कुछ करते हैं, केक भी बांटे जाते हैं, लेकिन मसीह के जी उठने का मुकाशफा रखे बगैर मनाते हैं। मसीह के जी उठने का मुकाशफा नहीं होता। अब वो क्या है जो आज हमें जरूरी है कि हम इस पर गौर करें कि मसीह मुर्दों में से जी उठा है। सुनिए, यीशु मसीह पैदा हुआ, हम उसका दिन मनाते हैं ना। उसको क्या कहते हैं? क्रिसमस कहते हैं, क्या दिन कहते हैं? क्योंकि उस दिन हमारा मसीह पैदा हुआ था। अब पैदा तो बहुत सारे और भी नबी हुए, और उन कौमों को जिनका मबूद पैदा होता है उस दिन खुशी मनानी होती है, और वो सब करते हैं।
लेकिन मसीह के जी उठने की खुशी सिर्फ मसीही मना सकते हैं, बाकी कौम में नहीं, क्योंकि उनके मबूद जिंदा नहीं है, मर गए, दोबारा जिंदा नहीं हुए। आमीन। और हमारा मसीह दोबारा जी उठा और फिर दोबारा जी उठने के बाद कभी मरने वाला नहीं। यूहन्ना रफ को वो मुकाशफा में बताता है, अपना तारफ इस तरह से करवाता है। मुकाशफा में यूहन्ना रफ का मुकाशफा पढ़िए, पहले बाब की 18वीं आयत भी पढ़िए, बल्कि 17वीं से शुरू करें, 17वीं से। जब मैंने उसे देखा, जब मैंने उससे देखा, यूहन्ना आरफ कहता है, तो उसके पांव में मुर्दा सा गिर पड़ा। जब मैंने उसे देखा तो उसके पांव में मुर्दा सा गिर पड़ा, और उसने ये कहकर मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखा। उसने यूं कहकर मेरे ऊपर दाहिना हाथ रखा कि खौफ ना कर, उसने कहा खौफ ना कर, मैं अव्वल और आखिर, मैं अव्वल और आखिर हूँ और जिंदा हूँ। और जिंदा हूँ, मैं मर गया था, मैं पहले मर गया था, और देख अब्दुल्लाबाद जिंदा रहूंगा। देख अब्दुल्लाबाद जिंदा रहूंगा, और मौत और आलम रुआ की कुंजियां मेरे पास हैं। मौत और आलमे रुआ की कुंजियां मेरे पास हैं। ये मेरा तारफ है कि मैं मर गया था, अब जिंदा हूं, और अगली बात कि हमेशा तक जिंदा रहूंगा। यूं उसने कहा और अपना हाथ उस पर रखा और उससे कहा, डरना, घबराना मत, डर, दलेर हो, दलेर हो। आज हमारे पास जो दलेरी है, हमारी मुनादी में जो पावर है, हमारे पास जो कुव्वत है, वो ये है कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। आमीन, आमीन, आमीन। वो मुर्दा नहीं है, उसकी कब्र खाली है, वो आसमान पर आज भी जिंदा है और अपने लोगों की शफायत करता है। कलाम ये बताता है, जब स्मुरना की कलीसिया के लिए पैगाम भेजा गया यूहन्ना रफ के जरिया से, स्मुरना की कलीसिया को मैसेज दिया गया, तो उसने अपना तारफ यूं करवाया। दूसरे बाब की 8वीं आयत में लिखा है, और स्मुरना कलीसिया के फरिश्ता को ये लिख कि वो जो अव्वलो आखिर, जो मर गया था और जिंदा हुआ, वो ये फरमाता है, अब अपना तारफ इस तरह से करवाता है, वो जो मर गया था अब जिंदा है, वो यूं फरमाता है। उसका तारफ ये है, मर गया था और अब जिंदा है। ये भेद है जो उनको बता रहा है, ताकि वो दलेरी हासिल करें कि जो मर गया था वो जिंदा है। वो यूं फरमाता है। यीशु मसीह के जी उठने के बाद हमें दलेरी हासिल होती है, और वही शिगिर जो डर के मारे छुपे हुए थे, फिर दलेरी से गवाही देने लगे। जब हम अमाल में पढ़ते हैं, जब रूल कुद्स उन पर नाज़िल हुआ, लोगों ने कहा ये नशे में हैं, वो गैर ज़ुबानें बोलने लगे, तो बाइबल लिखा है, पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ। पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ। अमाल की किताब में पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ। दूसरे बाब की 14वीं आयत में लिखा है, लेकिन पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ और अपनी आवाज बुलंद करके लोगों से कहा, ऐ यहूदियों और यरूशलेम के सब रहने वालों, ये जान लो और कान लगाकर मेरी बातें सुनो। अब वो जो कमरे में छुपा हुआ था, अब यीशु मसीह के जी उठने के बाद उसके अंदर दलेरी आई, क्योंकि जी उठने का मुकाशफा उसको मिला। और बाइबल में लिखा है, 11 के साथ खड़ा होकर जिनसे वो डरता था उनको यूं कह रहा है, बुलंद आवाज के साथ कह रहा है, ऐ यहूदियों
और यरूशलेम के सब लोगों, सब रहने वाले लोगों, सुनो, गौर से सुनो। अब सुनाता क्या है? मसीह के जी उठने की बातें सुनाता है। जिसे तुमने मसलूब किया वो मुर्दों में से जी उठा है, उसी की कुदरत से हम गैर ज़बानें बोल रहे हैं। आमीन। अब उसके अंदर दिलेरी आई, अब उसके अंदर पावर आई, उसके अंदर कुव्वत आई। पहले कलाम उनके पास था, पहले बोला हुआ कलाम उन्होंने सुना हुआ था, लेकिन कलाम का मुकाशफा उनके अंदर नहीं था। मसीह के जी उठने की बात तो उन्होंने सुनी हुई थी, लेकिन जी उठने का मुकाशफा उनके पास नहीं था। अब जो ही जी उठने का मुकाशफा हासिल किया तो फिर मौत से भी नहीं डरते थे, मौत से भी नहीं घबराते थे। पहले तो मौत का खौफ था, पहले तो मौत का डर था, लेकिन अब मौत का डर खत्म हुआ और वो मरने को भी तैयार थे। आमीन। और वो यूं भी कहने लगे कि मसीह को तो आपने सीधा सलीब पर चढ़ाया, हमें उल्टा चढ़ा दो, हमें कुछ परवाह नहीं है। दलेरी आई। क्यों दलेरी आई? क्योंकि मौत का खौफ तो सारी दुनिया पर है। आदम से लेके दुनिया मौत के खौफ के नीचे, आज भी लोग मौत से डरते हैं। आज भी बड़े बड़े लोग, बड़े दौलतमंद लोग, जिनके पास बहुत कुछ है, सब कुछ होने के बाद मौत का खौफ उनके ऊपर आज भी काम करता है। सिर्फ वो जो मसीह के मुकाशफा को समझ गए हैं, उन पर से उतरा हुआ है, वही आजाद हैं, उनको मौत का डर नहीं। उसकी वजह क्या है? क्योंकि मौत किसी को माफ नहीं करती। मौत हर एक पर हावी है, लेकिन यीशु मसीह मौत पर गालिब है। आमीन। यीशु मसीह मौत पर गालिब है। और मुकाशफा यह है कि जो लोग मसीह के लोग हैं, जो लोग मसीह के लोग हैं, जिस तरह से मसीह मौत पर गालिब है, मसीह के लोग मसीह के वसीला से मौत पर गालिब हैं। कलाम में मैं बहुत सारे हवालों के साथ ये साबित करूंगा कि मसीह के लोग भी मौत पर गालिब हैं। मरते नहीं है, सो जाते हैं। पालूस कहता है थस्सलुनीकियों में, पहला थस्सलुनीकियों, पालूस इस भेद को यूं बयान करते हैं। थस्सलुनीकियों के नाम पहला खत, चौदहवीं आयत पढ़िए, चौथे बाब की। क्योंकि जब हमें ये यकीन है कि यीशु मर गया और जी उठा, तो उसी तरह खुदा उनको भी जो सो गए हैं यीशु के वसीला से उसी के साथ ले आएगा। आमीन। पालूस कहता है जब हमें यकीन है कि मसीह मर गया और मरने के बाद जी उठा, हमें यकीन है कि मसीह मर गया और मरने के बाद जी उठा, तो फिर उसी तरह उनको भी जो सो गए हैं मसीह में, मसीह के वसीला से उसी के साथ ले आएगा। चनाचे हम तुमसे खुदा के कलाम के मुताबिक कहते हैं, हम जो जिंदा हैं और खुदावंद के आने तक बाकी रहेंगे, सोए हुओं से हरगिज आगे ना बढ़ेंगे, क्योंकि खुदावंद खुद आसमान से ललकार और मुकर्रब फरिश्ता की आवाज और खुदा के नरसिंगा के साथ उतर आएगा। पहले तो वो जो मसीह में मुए वो जी उठेंगे। आमीन। पहले तो वो जो मसीह में मुए वो जी उठेंगे। मुकाशफा ये है कि जो मसीह में, जब हमें यकीन है कि मसीह मर गया, जब हमें यकीन है कि मसीह मर गया और मरने के बाद जी उठा, तो फिर उसी तरह ललकार के साथ, नरसिंगा के साथ, पहले तो वो जो मसीह में मुए वो जी उठेंगे,
फिर हम जो जिंदा बाकी होंगे उनके साथ बादलों पर उठाए जाएंगे ताकि हवा में खुदा का इस्तकबाल करें और इस तरह हमेशा खुदावंद के साथ रहेंगे। बस तुम इन बातों से एक दूसरे को तसल्ली दिया करो। तुम्हारे पास अगर खुदा के मसीह के जी उठने का मुकाशवा है, समझ गए हो कि उसके साथ हम भी जी उठेंगे, तो फिर इन बातों का एक दूसरे को मुकाशवा दिया करो, इन बातों का पैगाम दिया करो और एक दूसरे को तसल्ली दिया करो कि मसीह मर गया था, जी उठा है और अब्दुल आबाद जिंदा रहेगा, कभी दोबारा मरने का नहीं। पालूस रसूल रोमियो की कलीसिया को बताता है, 6 बाब में 9वीं आयत पढ़िए, उनको बताता है कि मसीह जी उठा, दोबारा मरने का नहीं है, क्योंकि वो मुर्दों में से जी उठा है, मौत पर गालिब है, मौत पर फतह पाई है। मौत सबको मार देती है, मसीह ने मौत को भी मार दिया। आमीन। मसीह मौत पर गालिब आया। अब मौत से ललकार कर कहा, मौत तेरी फतह किधर गई है, तेरा डंक किधर चला गया है, अब तेरा डंक भी नहीं है, अब तेरी फतह भी नहीं है, क्योंकि तू मुर्दा हो चुकी है और मसीह जिंदा हो चुका है, दोबारा मरने का नहीं है। और वो जो मसीह पर यकीन करते हैं, उसके जी उठने का मुकाशवा रखते हैं, उसके जी उठने की मनादी करते हैं, वो सारे मसीह में दोबारा जी उठेंगे और हवा में इस्तकबाल भी करेंगे। जी पढ़िए रोमियो में 6 बाब की 9वीं आयत पढ़िए। क्यों ये जानते हैं कि मसीह जब मुर्दों में से जी उठा है, हम ये जानते हैं कि जब मसीह मुर्दों से जी उठा है तो फिर नहीं मरने का, तो दोबारा मरने वाला नहीं है। मौत का फिर उस पर इख्तियार नहीं होने का, मौत का इख्तियार खत्म हो चुका है, मौत पर गालिब आ चुका है, इसलिए दोबारा मरने का नहीं है। और भी मुर्दे जिंदा हुए, दोबारा मर गए, लेकिन मसीह जिंदा हुआ क्योंकि उसने मौत पर फतह पाई है, गालिब आया है, दोबारा मरने का नहीं। हर एक जो मसीह के जी उठने का यकीन करता है, मसीह के साथ इस भेद को समझता है, वो जी उठेगा, दोबारा जिंदा होगा और मसीह के साथ हमेशा रहेगा। खुदा का कलाम ये बयान करता है। फिर क्यों मसीह हुआ और जी उठा, इसका भेद रोमियो 14 बाब की 9वीं आयत पढ़ी। मकसद क्या था उसका, मरना और दोबारा जी उठना। रोमियो 14वां बाब 9वीं आयत पढ़ी। क्योंकि मसीह इसीलिए हुआ और जिंदा हुआ कि मुर्दों और जिंदों दोनों का खुदावंद हो। क्यों हुआ और क्यों जिंदा हुआ? इसलिए मरा और जिंदा हुआ ताकि मुर्दों और जिंदों दोनों का खुदा ठहरे। मुर्दे भी जो मर चुके हैं उनकी भी उम्मीद खत्म नहीं हुई और जो जिंदा हैं उनकी भी उम्मीद खत्म नहीं हुई, क्योंकि लिखा है कि हम उसके साथ, पहले तो वो जो मसीह में हुए वो जी उठेंगे और हम जो जिंदा हैं उसके साथ हवा में इस्तकबाल करेंगे। अब वो मुर्दों और जिंदों दोनों का खुदा ठहरा, इसलिए हुआ और जिंदा हुआ कि वो मुर्दों और जिंदों दोनों का खुदा हो। मरने वालों को भी उम्मीद हो कि उनका भी खुदा उनको आसमान की बादशाह में दाखिल करेगा। मरने के बाद हमारी उम्मीद खत्म नहीं होती। और यहाँ पर लिखा है, ऐ भाइयों हम चाहते हैं कि जो सोते हैं उनकी बाबत तुम ना वाकिफ ना रहो, ताकि औरों की मानद जो नाउम्मीद हैं गम ना करो। औरों की मानद, लोग नाउम्मीद हैं, लोग गम करते हैं, तुम औरों की मानद जो नाउम्मीद हैं गम ना करो, गम ना करो। करंथियों में, पहला करंथियों 15वें बाब में पौलुस रसूल इस भेद को इस तरह से बयान करते हैं। 14वीं आयत पढ़िए। और अगर मसीह नहीं जी उठा तो हमारी मनादी भी बेफायदा है और तुम्हारा ईमान भी बेफायदा। अगर मसीह जी नहीं उठा, करंथियों की कलीसिया को कहता है, अगर मसीह जी नहीं उठा तो हमारी मनादी भी
बेफायदा है और तुम्हारा ईमान लाना भी बेफायदा है। 17वीं आयत पढ़िए इसी की। जी। और अगर मसीह नहीं जी उठा, अगर मसीह नहीं जी उठा तो तुम्हारा ईमान बेफायदा है, तुम्हारा ईमान भी बेफायदा है। तुम अब तक अपने गुनाहों में गिरफ्तार हो, अभी तक तुम अपने गुनाहों के अंदर हो, माफी भी नहीं हुई। अगर मसीह नहीं जी उठा, गुनाह भी खत्म नहीं हुए। अगर मसीह नहीं जी उठा, हमारी मनादी बेफायदा चली गई। अगर मसीह नहीं जी उठा तो तुम्हारा ईमान लाना भी बेफायदा। इस बात पर गौर करें, सुनिए, जरा गौर से सुनिए। अगर मसीह नहीं जी उठा तो हमारी मनादी बेफायदा रही, और अगर मसीह नहीं जी उठा तुम्हारा ईमान लाना बेफायदा हुआ और गुनाह भी माफ नहीं हुए। अब यह बड़ी गौर करने की बात है। अगर बाइबल में से मसीह का जी उठना निकाल दें, बाइबल के अंदर से मसीह का जी उठना खत्म कर दें, ये वाला हिस्सा उसका खत्म कर दे बाइबल में से, तो हमारी मनादी दूसरी कौमों के बराबर चली जाएगी। सिर्फ तलीम। लेकिन हमारी मनादी पर जोर जो है, हमारे पास जो दलेरी है, और दलेरी से खुदा के तख्त के पास जाने का जो मुकाशफा है, वो हमें मसीह के जी उठने की वजह से मिलता है, जबकि बाकी लोगों के पास ये मुकाशफा नहीं है। उनके माबूद जमीन पर आए, तालीम दी, तालीम देने के बाद उनकी डेथ हुई, और उसके बाद वो कब्रें आज भी सजी बनी पड़ी हैं, और कब्रों पर फूल डाले जाते हैं, हार डाले जाते हैं, लेकिन मसीह की कब्र आज भी खाली है और हमेशा तक खाली रहेगी। यह मुकाशफा सिर्फ मसीहियों के पास है, बाकी लोगों के पास नहीं है। इसलिए हम जोर से कहें कि हमारा मसीह जी उठा है और अब्दुल्लाबाद जिंदा रहेगा। और ये मुकाशफा जब कलीसिया को मिला, इब्तदाई कलीसिया को, रसूलों को मिला, तो उन्होंने सारा जोर इस बात पर दिया कि मसीह जिसको तुमने मसलूब किया वो मुर्दों में से जी उठा है। हमारे पास उम्मीद है, हम भी उसके साथ आसमान पर जाएंगे, हमेशा उसके साथ रहेंगे। खुदा आपको बरकत दे, और जोर से नारा लगाइए कि यीशु मसीह जी उठा है, और उसका गीत गाइए, हालेलुया बोलो, यीशु जिंदा हो गया।